Hi, good afternoon, everyone. I am Dr. Priyank Patel. I am a consultant spine surgeon at Jupiter Hospital, Thane. And we are here thanks to Jupiter Hospital. I think it's a brilliant initiative that they are taking using technology and connecting us. You guys are safe at home, and I'm here in the confines of my room. And there are a lot of things that we are going to discuss. So, the most important thing which everybody is talking about right now is lockdown, right? So lockdown was something that was started in our country around 3 months back with a plan of being locked down in the confines of your house for around 3 weeks. Now that 3 weeks has extended to more than 3 months, and mind you, the war is not yet over. We are still fighting it, and in order to fight it, we are gearing up with a lot of changes that are happening in our life. So with this lockdown, there are a lot of changes that people have made which has directly impacted the spine. Today, I'm going to talk to you about how these activities or these things are affecting your spine from a spine surgeon's perspective. So I'm going to give you around 5 minutes till everybody settles in, and then we'll start with our today's topic. Yeah. All right. I've got to go ahead saying that there are people already waiting for me to talk. So let's get back to why we are here today. See, back and neck related problem has been something that we spine surgeons have been dealing with for ages. In fact, if you look at world statistics, back related problem is the second most important, most common cause for which a patient connects with the doctor. During this lockdown, this problem, if at all, has increased. So we are here to find out why it has increased and what we can do to stop its increase. Before going to the main topic, let me just quickly educate you regarding how our back works. Now, our back is a brilliant body. It's made up of multiple bones which are stacked up on top of each other. Okay, it's just like during childhood we used to play with Lego blocks. So here what happens is that the bones are stacked up on top of each other. In between bones, you've got a cushion in the front. Okay, this cushion is just like our gadi. Okay, the job is that whenever we move around, whatever burden or load comes, it takes that away. In the back, you've got joints, just like any other joints in our body. And all of this protects the nerves that is going through the spine. What happens is when we are young, the cushions are absolutely new. Just जैसे हमने नया सोफा लिया, it's nice and flexible. आप उस पे बैठते हो तो वो अपना लोड खींच लेता है, और जैसे आप उठ जाते हो वो जैसा है वैसा हो जाता है. जैसे जैसे ये सोफे पुराने होने लगते हैं, क्या होता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है और उस पर प्रेशर आया तो वो दब जाता है, राइट. सेम थिंग हैपेंस इन आवर स्पाइन. जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, ये जो कुशंस है बहुत सारे कारणों के वजह से खराब होना चालू होते हैं. जैसे खराब होते हैं, लोड लेने की ताकत इसकी कम हो जाती है, एंड ऑल प्रेशर गोज टू द जॉइंट्स इन द बैक. ओके, एंड जैसे जॉइंट दबना चालू होते हैं, हमें दर्द वगैरह चालू हो जाता है. सो दिस इज बेसिकली जो हमारे स्पाइन में हो रहा है. एंड ये कुछ अलग बात नहीं है. You, me, everybody is going to undergo this. It's as good as graying of your hair. So if you think that you don't have this problem, you are mistaken. If you don't have it, at some stage you are going to get it. So with this knowledge, let's get back to how lockdown has really changed all of this. Now, I see from a spine surgeon's point of view, three major things in everybody's life which has really changed. Number one is work at home. So everybody has now altered their activities so that they're confined to their houses. So you have people who are initially working, workaholics, traveling, going from multiple cities here and there, going to offices, meeting friends in clubs and everything, are now confined to their table and chair, and they're working from home. Number one. Schools have started shifting to online classes. तो सब लोग अभी घर पे बैठ के बच्चे पढ़ते रहते हैं. Okay. पहले when we were free, like Saturday Sunday free मिला, we go out, we get involved in sports, building में cricket खेलने जाते हैं, उसमें हमारे body की natural activities होती है, वो बंद हो गई है. Now we are sitting at home playing with our PlayStations. So basically इसमें एक common thing क्या है? Sitting has increased. Okay, हम जब थक के घर पे आते हैं तो हम ऐसे बैठ जाते हैं और हमें लगता है wow, that's the best thing in the world. But sitting relaxes a lot of muscles.
द प्रॉब्लम इज व्हेन इट कम्स टू द स्पाइन. सी व्हेन यू आर सिटिंग, आपका स्पाइन तो सीधा है, मतलब स्पाइन का काम 100% चालू है. इसके लिए इवन व्हेन यू आर सिटिंग योर स्पाइन इज नॉट एट रेस्ट. तो अभी क्या होता है, व्हेन वी सिट अ लॉट, हमारे स्पाइन पे प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है. हमारे स्पाइन के आजू बाजू में मसल्स रहते हैं, दीज आर कोर मसल्स ऑफ आवर बॉडी. ये मसल्स जो है ये स्पाइन को सपोर्ट करते हैं. बट जैसे कोई भी मसल्स होते हैं, जैसे टाइम निकलता जाता है ये मसल्स सारे थक जाते हैं. जैसे ये मसल्स थक गए, लोड जो है वो मसल्स छोड़ देता है. तो इनिशियली अगर आप किसी को देखेंगे, यू आर सिटिंग लाइक दिस, एकदम स्ट्रेट, हमारे सब मसल्स काम कर रहे हैं. थोड़ा टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, थोड़ा काम हो गया, हम फिर ऐसे होना चालू करते हैं. ओके, दिस इज नॉर्मल, सब एवरीबॉडी डज दैट. ओके, तो अंदर क्या हो रहा है, इस मसल्स ने सहारा छोड़ दिया तो स्पाइन ऐसे होना चालू हो गया, विच मीन्स आपके जो कुशन्स है वो ज्यादा दबना चालू हो गए. ओके, सो एनीवेज जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है योर कुशन्स आर गेटिंग वीकर, राइट. ऑन टॉप ऑफ दैट व्हेन यू डू दिस, व्हाट हैपेंस इज वीक कुशन के ऊपर और प्रेशर आता है एंड हमें दर्द होना चालू होता है. इनिशियली क्या होता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, वी रिगल आवरसेल्फ एंड वी डू दैट. Later on what happens is towards the end of the day it starts becoming unbearable and then you want to really go and rest, and this cycle keeps continuing, and this is basically what is called as mechanical back pain, and it is tremendously on the rise, especially in the lockdown. All right, so this is one thing that the new normal has caused us. All right, the other thing is maids. India, we were very lucky that we were able to have a lot of maids and all, which a lot of Western countries don't have. So Indian population is not used to doing the household chores. So kabhi life mein maine, I have not done home activities, but now there are no maids. I have to do it, otherwise my wife is going to kick me out, right? Same way, everybody has started contributing to their household activities. People are doing a lot more cleaning, people are doing a lot more dusting, then you are lifting things and picking up from here and there. Again, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमारे बैक को इम्पैक्ट होता है. Alright, so this is a second problem that has started occurring, जिसमें हमने एक्टिविटीज बढ़ा दिया. So our spine जैसा है वैसा है, बट क्योंकि एक्टिविटीज बढ़ गई हमारे स्पाइन के ऊपर जोर और बढ़ गया. ओके, थर्ड थिंग जो चालू हुई है वो है फिटनेस. सिंस अभी हम लॉकडाउन में हैं, so we have a lot more time in our hand, and I always remembered one person telling me that if you don't come out of this lockdown fitter than you were before, you have not managed your time well. Okay, so and that's a fact, everybody wants to get fit. So there are people who are taking up Zumba, there are people who are taking up Pilates, yoga, aggressive yoga, then gymming, kettlebells, all these exercises have started. You have to also know that not all exercises are good for you. Of course, exercise is the thing that you need to do, but there is a way to do it. And अगर हमने कोई एक्सरसाइज गलत कर ली, जैसे मैं आज फर्स्ट टाइम जिम में गया और 30 किलो का डंबल उठा दिया, that's it, खत्म. मैं लाइफ में कभी वापस अपने हाथ से डंबल नहीं उठा सकूंगा. बट अगर मैं 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 30 किलो ऐसे करके किया, तो then I will be able to do it and my muscles will also start building. So ये तीन चीजें हैं which has drastically changed during lockdown, जिसके कारण lot of people have increased problems. Okay, so I'm going to focus on these three things and give you certain tips and tricks that you guys can follow, and most likely you'll never need to come to me. In fact, I can stick my head out and say that 80% आपका ये जो problem है will just get sorted out by these few things. So let's get back to our first thing, and that is work from home. Work from home के लिए only thing that you're doing is sitting. So sitting जो है एक एक्टिव एक्टिविटी है. See, I'll explain to you उसका मतलब क्या है. ये हो जाता है पैसिव एक्टिविटी, जहां पे हमने पूरे बॉडी को छोड़ दिया है. ओके, ये हो जाता है पैसिव सिटिंग, मतलब चेयर के सहारे में बैठ रहा हूं. ओके, एंड ये हो जाता है एक्टिव सिटिंग. ओके, जब भी हम पैसिवली बैठते हैं हमारा स्पाइन ऐसे होता है. ओके, बट जब भी हम एक्टिवली बैठते हैं हमारा स्पाइन ऐसे शेप में होता है, जो नेचुरल शेप है. और ये नेचुरल शेप कौन रखता है? हमारा मसल्स रखता है. अब आपको याद रखना चाहिए कि मसल्स इज समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क ओनली फॉर सम टाइम. इट हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे कि थोड़े टाइम यूज होने के बाद वो थक जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं फोन पकड़ के रखूं, आधे घंटे में मेरा हाथ थक जाएगा और नीचे चला जाएगा, राइट. बट अगर आई एम अ बॉडी बिल्डर विद बिग बाइसेप्स, मैं ऐसा 2 घंटे तक पकड़ सकूंगा, बट 2 घंटे के बाद मेरा हाथ थक जाएगा और नीचे जाएगा.
इसका मतलब क्या है कि मसल्स जो है ये थकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, पहली बात तो नेचुरल शेप में बैठना है, मतलब अपराइट बैठना है। ओके, जिस तरह से आपके पैर, योर लेग्स आर फर्मली सीटेड ऑन द ग्राउंड, your buttock is right in the chair and you're sitting straight, such that it is not the chair that is supporting you, but it is your muscles that are making you support. Now any normal person can sit like this for half an hour maximum, फिर वो थक जाते हैं। That is the time you get up, आप खड़े होके you take a round so that वो muscles को थोड़ा रेस्ट मिले and वापस आप बैठ जाइए। So this is what you should do. Slouching should not be done. But in spite of हम कितना भी ट्राई करें, you have horrible bosses at work and you have to work. So initially जो 5 घंटा काम करते थे, अभी वर्क फ्रॉम होम में 10 घंटा हो गया। ऑलराइट, सो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि स्टार्ट शिफ्टिंग टू समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडिंग डेस्क। ओके, स्टैंडिंग डेस्क जो चीज है, इट इज अ कंसेप्ट विच इज नाउ टेकन अप बाय लॉट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। आइडिया क्या है, खड़े होके काम करो, बिकॉज स्टैंडिंग इज way better than sitting. In fact, sitting is the new smoking. जैसे स्मोकिंग से बहुत सारे नुकसान होते हैं, सिटिंग से भी उतने ही नुकसान होते हैं। तो जितना हो सके यू शिफ्ट योर लाइफ टू स्टैंडिंग। अगर आपके घर पे हाई प्लेटफॉर्म है, अगर आपके घर पे हाई सरफेस है, उसके ऊपर आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं और खड़े रह के अपना काम कर सकते हैं। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं कि आपकी पुरानी बुक्स वगैरह का एक थप्पा बनाओ एंड यू पुट समथिंग ऑन दैट। ओके, आपको कोई फैंसी चेयर्स की जरूरत नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज अर्गोनॉमिक चेयर्स के पीछे खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट थिंग टू सिट ऑन इज अ बार स्टूल। बार स्टूल ऐसा रहता है जिसमें बैक सपोर्ट ही नहीं रहता है। आप उसको इतना हाई करो ताकि आप जस्ट अपना बटक उसके ऊपर रखो एंड यू आर जस्ट सपोर्टिंग इट, बट आपका बैठने का काम आपका मसल्स कर रहा है। इस तरह से अगर आप बैठेंगे तो आपके स्पाइन को डैमेज नहीं होगा, और ये जो बैक पेन्स आपको हो रहे हैं वो आपके पोस्चर की वजह से नहीं होंगे। ये पहली चीज जो आपको करनी चाहिए। The second thing that you need to look at is the other household chores that we are doing. अभी जब भी हम household chores करते हैं, it is very common कि हम ऐसा दूर reach out करके कुछ लेने की कोशिश करते हैं या आगे झुक के कुछ उठाने की कोशिश करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज में डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बैक पे आता है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट, यू शुड गो नियर दैट एंड पिक इट अप विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। ओके, डोंट पिक इट अप विद द हेल्प ऑफ योर बैक। Hands are, they just have bones and they have got muscles. There is not a lot of things that will get injured here. तो hand का यूज करने का, remember, अगर आप हाथ से कुछ चीज उठा नहीं सकते, you are not ready to pick that up. Okay, so that is one thing. दूसरा थिंग आपको क्या करना चाहिए इस, जब भी आप आगे झुक के कुछ उठाने की कोशिश करते हैं, अगेन जब भी आप उठाते हैं, बैक के सहारे मत उठाओ। यूज योर नी, यूज योर हिप्स, यूज योर हैंड। Go down completely and get up completely using all these joints. तो क्या होता है कि ये वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कॉमन चीज है cleaning the utensils. Okay, and I am sure all the guys are being punished right now कि जाके बर्तन घिसो, right? So आपको आदत नहीं है, so there is a very nice tip जो आप यह यूज कर सकते हो। एक होता है आप आगे बेंड होके वॉश करो, बट अगेन डायरेक्ट प्रेशर बैक पे आ रहा है। इसके जगह what you do is use a apron, क्योंकि हम ऐसे क्यों बेंड करके करते हैं, बिकॉज वी आर सबकॉन्शियसली स्कैर्ड कि हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे और तो हम दूर खड़े रह के ऐसे धोने की कोशिश करते हैं। नहीं, एकदम प्लेटफॉर्म के नजदीक जाओ। ओके, आपके थाइज और आपके पेल्विक बोन या हिप बोन को प्लेटफॉर्म से अटैच करो, सपोर्ट लो प्लेटफॉर्म का, एंड देन यू डू इट। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर शेयरिंग द लोड ऑफ योर बैक विथ योर थाइज। ओके, सो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि जो तकलीफ होती है बैक में वो कम होगी। ऑलराइट, ये सारी चीजें आपको करनी है। एंड लास्टली, mopping and dusting and grooming and all that. The best thing is now it's time that you invest on a good mop, जहाँ आप खड़े होके मॉप कर सको rather than bend होके मॉप करना है। ओके, बट इनकेस आपके पास नहीं है और बेंड होके करना है, यू नो लंजेस रहता है जहाँ पे आप आपके नी और हिप को फोल्ड करके आगे से साफ करते हो, वो तरीके से आपको डस्टिंग वगैरह करना चाहिए। ऑलराइट, सो दीज आर द फ्यू हाउसहोल्ड टिप्स दैट यू कैन चेंज, जिससे आपके बैक रिलेटेड इंजरीज थोड़ी कम हो जाएगी। द लास्ट पार्ट इज एक्सरसाइजेस। रिमेंबर, exercises is something that everybody should do, but one thing is very clear: if suppose you are suffering from neck pain and back pain, sometimes exercises are going to damage you. Okay, so don't go by the generic exercises. What you need to do is
people are under a misconception that हाँ I'm 40 years old, I'm 50 years old, I'm 60 years old, थोड़ा तो कमर में दुखने वाला है. No, that's not a fact. Okay, you should not be living with back pain. अगर आपको बैक पेन है उसका मतलब आपका कमर कमजोर है. ऑलराइट, सो पहली चीज क्या करो, आप कमर को मजबूत करो एक्सरसाइज करके. ओके, जैसे ये कमर मजबूत हो जाती है, कुशन के ऊपर से प्रेशर हट जाता है. ओके, उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करो, जैसे जंपिंग हुआ, जॉगिंग हुआ, रनिंग हुआ, स्किपिंग हुआ, योगा हुआ, स्ट्रेचिंग हुआ, ये सारी चीजें आप कर पाएंगे क्योंकि आपके बैक को सपोर्ट करने के लिए कुछ रहेगा. इमेजिन आपका बैक कमजोर है और आपने स्किपिंग चालू किया. ओके, तो यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आपका ये बैक है एंड एवरी साइकिल ऐसा हो रहा है, मतलब आप खुद से हथौड़ा आपके बैक के ऊपर मार रहे हो. ऑलराइट, सो रिमेंबर, अगर आपको बैक पेन है और नेक पेन है, टारगेटेड एक्सरसाइजेस जो बैक के लिए रहती है, नेक के लिए रहती है, पहले वो करो. ये करने के बाद जैसे आपका बैक पेन निकल गया, ओके, उसके बाद आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो. नाउ योगा, पिलाटेस, ये सारी अच्छी एक्सरसाइजेस है आपके लोअर बैक के लिए, मतलब जिनको लोअर बैक पेन है. बट ट्रेडिशनल जिमिंग जहां पे आप डेडलिफ्ट करते हो और स्क्वाट्स करते हो वेट्स के साथ, वो लोअर बैक के लिए अच्छी एक्सरसाइजेस नहीं है. योगा बहुत अच्छा है बैक के लिए, बट हर एक कंपोनेंट नहीं. इफ यू नो लिटिल बिट मोर अबाउट योगा, देयर आर 3 कंपोनेंट्स. वन इज ब्रीथिंग, ओके, द अदर वन इज स्ट्रेंथनिंग एंड थर्ड वन इज स्ट्रेचिंग. ओके, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से बैक को नुकसान होता है अगर आपकी बैक खराब हो तो इसके लिए जेनेरिक योगा करने के जगह either you get in touch with your yoga teacher who is intelligent, who knows कि आपको बैक का प्रॉब्लम है, या तो फिर थोड़े टाइम के लिए आप योगा मत करो एंड आप you do those exercises जो साइंटिफिकली सिलेक्ट की गई रहती है to take care of your back. Now ये exercises अगर आप करेंगे, at the end it is some fancy name for some exercise which is pulled out of yoga only. Alright, but it is better that you follow that thing doing generic exercises. Okay, one other thing I want to mention now only before I proceed ahead, that there is nothing in life you cannot do if you are having back related problems. Everything in the world you can do. I can name so many people who have suffered with so much major back related problems, but they have conquered everything and they are at the top of the world. Of course, because of patient secrecy I cannot reveal their name, but there are sportsmen who are playing international sports and succeeding in spite of back related problem. So दिमाग से निकाल दो कि एक बार बैक प्रॉब्लम आया, you cannot do things. Of course you can do things, but there एक तरीका होता है कैसे करना है. So next what I'm going to tell you is, in spite of ये सब चीज, अगर बैक पेन हुआ तो क्या करना चाहिए. ओके, सो बैक पेन 2 तरीके का होता है. एक बैक पेन का तरीका होता है जो मैकेनिकल बैक पेन है, जिसके बारे में हमने पहले बताया, जहां आप फ्रेश रहते हैं, सब नॉर्मल है, दिन के एंड में आपको थोड़ा बैक पेन वगैरह चालू हो गया. ओके, एक वो तरीके का बैक पेन रहता है. कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जिसकी हमें आदत नहीं है, जिसकी हमारे बॉडी को आदत नहीं है, विच इज लाइक मेरी कैपेसिटी है 20 किलो उठाने का और सडनली मैंने 40 किलो उठा लिया. सेम वे घर में साफ सफाई करनी है एंड यू नो योर वाइफ सेज दैट थोड़ा बेड को हटा दो ताकि मैं साफ सफाई कर सकूं, राइट, एंड आपने बेड को जोर से धक्का मारा. इसमें क्या होता है कि सडन प्रेशर आ जाता है स्पाइन में और ये जो डिस्क खराब है वो फट जाती है. ओके, जैसे वो फट जाती है आपको बैक में पुल आता है. ओके, रिमेंबर, ये जो पुल है ये मसल इंजरी नहीं है. दिस पुल इज बिकॉज मसल्स हैव गॉन इनटू अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. The reason why the back is in a state of contraction is the body does not want any more movement happening over here, because if you move at this place, what is going to happen is that the injury is going to worsen. Okay, so the back locks this. All right, so that is what is called as a pull in the back. So these are the 2 types of problem that can happen. All right, so अगर आपके back में pull आया, first thing is respect your body, respect the spasm, don't poke it. जाके बेड रेस्ट करो. 3 days of bed rest is more than enough for the injury to heal. Okay, जैसे इंजरी हील हो जाएगी, you will realize that वो जो धक्का मारने के बाद बॉडी हमारी लॉक हो गई थी, 4 लोगों को बुलाना पड़ा उठा के बेड पे शिफ्ट होने को, वो चला जाता है. एंड बैक पेन रहता है बट आपकी मूवमेंट नॉर्मल हो जाती है. सो यू आर बैक टू दैट स्टेट जहां पे यू हैव अ वीक बैक. ओके,
And logically, like you don't need to be a rocket scientist to figure that out. If you have a weak back, you need to make it strong. Okay. So this happens only by exercises. There is no other way. You cannot pop pills and get stronger. वो तो exercise से ही होता है. And this is where the exercises that we will recommend to you will make your back strong. Okay. So ये exercises भी एक तरीका होता है करने का. इसमें जो core muscles है और जो बैक एक्सटेंसर्स है इस पे काम किया जाता है. सो ये वो शो मसल्स नहीं है. मतलब ये एक्सरसाइज करने के बाद आईने के सामने देख के कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज अंदर से चीजें स्ट्रांग हो रही है, बाहर आपको कुछ नहीं दिखता है. लाइक एनी अदर एक्सरसाइज, पहले बेसिक लेवल एक्सरसाइज की जाती है 2-3 हफ्ते के लिए. अगर हम कंफर्टेबल हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम बिना पेन के एक्सरसाइज कर पाते हैं, तो फिर हम एडवांस लेवल एक्सरसाइज चालू करते हैं. एनीवेयर बिटवीन 6 हफ्ते से 3 महीने तक आपके कोर मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि पहली बात आपका बैक पेन पूरा निकल जाता है. ओके. दूसरा, आप बाकी की एक्सरसाइज अगर करेंगे, लाइक उसके बाद आपने जॉगिंग चालू किया, जिमिंग चालू किया, तो आपके बैक को इंजरी नहीं होगी. ऑलराइट. In fact, our physio department has been so kind enough that they have actually recorded basic and advanced level exercises जो हम इवेंचुअली यही जगह पे डालेंगे. सो आप जस्ट उसको देख के वो एक्सरसाइजेस चालू कर सकते हैं. ओके. कभी ये भी प्रॉब्लम होता है कि बैक के बारे में तो हो रहा है, द अदर बिग प्रॉब्लम इज द नेक. ओके. बिकॉज जब भी हम ये सब कर रहे हैं, हमारे नेक पे भी लोड आ रहा है. अगेन, नेक जो है वो कमर जैसा ही काम करता है. उसमें भी हड्डियां होती है, हड्डियों के बीच में गद्दे होते हैं और मसल्स उसको सपोर्ट करते हैं. तो सपोज हमने ओवर यूज कर दिया हमारा नेक का, तो फिर गड़बड़ है और नेक पेन होना चालू हो जाता है. अगेन, नेक का ओवर यूज अभी बहुत कॉमन है, बिकॉज जो मैं अभी कर रहा हूं वो आप घर पे करते रहेंगे. लैपटॉप के सामने बैठा रहना. ओके. फिर कॉन्स्टेंटली नीचे देख के काम करना, या बुक्स पढ़ना, लिखना, ऑल दीज थिंग्स में आप कॉन्स्टेंटली नीचे देखते रहते हो. अभी अगेन, नेक का जो शेप है वो भी ऐसा होता है. जब भी हम नीचे देखते हैं, क्या होता है कि ये आगे बेंड होना चालू होता है, वापस ओवर यूज हो जाता है और आपको दर्द होना चालू होता है. टिपिकली आपको यहाँ पे सब दर्द होना चालू हो जाता है और वो इवनिंग में चालू होता है. सो मॉर्निंग में आप फ्रेश रहेंगे, दोपहर शाम तक ये तकलीफ होना चालू हो जाएगा, देन आपको चाहिए कि कोई मसाज करेगा. दिस इज दैट टिपिकल अगेन मैकेनिकल नेक पेन. ओके. और इसको ठीक करने का भी आंसर इज द सेम, आप उसको एक्सरसाइज करो. राइट. अभी बात रहती है कि सिर्फ एक्सरसाइजेस से काम होता है या दवाइयों की भी जरूरत रहती है. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दवाई की कोई जरूरत नहीं है. ओके. दवाई जो रहती है वो पेन किलर होती है. आप कोई भी टाइप की दवाई लो, आप होम्योपैथिक लो, आप एलोपैथिक लो, आप आयुर्वेदिक लो, एट द एंड ऑफ द डे दर्द के लिए जो दवाई दी जाती है वो पेन किलर ही होती है. कोई भी ऐसी दवाई दुनिया में नहीं बनी है जो आपके अंदर की घिसावट को रिवर्स कर सके. मतलब आपके बाल अगर सफेद हो गए, वो काले कभी नहीं होंगे. आप बाहर से उसको कलर चिपका सकते हो. सेम वे आपका स्पाइन अगर वीक हो गया, कोई दवाई से कुछ नहीं होने वाला है. तो डोंट गेट स्टक कि अरे ये दवाई लेके कुछ होगा. ओके. यस, बट स्पाइन को नॉर्मल रखने के लिए उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो इंपॉर्टेंट है. मतलब प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए. विटामिन डी इंपॉर्टेंट है आपके बोन्स के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए. विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है आपके नर्व्स के लिए. और अभी लॉकडाउन में हम घर पे फंसे, विटामिन डी तो सिर्फ सनलाइट से आता है, तो सनलाइट तो दूर की रही. प्लस हम बॉम्बे में रहते हैं, इट्स अ सीमेंट क्लाउड अप देयर, तो हमें हार्डली मिलता है. तो जो दवाइयां होती है वो कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स होते हैं और साथ में गुड प्रोटीन डाइट. सो ये बेसिक दवाइयां होती है जो आपको लेनी रहती है. ऑफ कोर्स जो वो सिचुएशन है जहां पे आपका बॉडी पूरा अकड़ गया है, ऐसे सिचुएशन में जब भी आप रेस्ट कर रहे हैं, तभी आप पेन किलर जैसे क्रोसिन पेन हुआ जो सेफ है वो आप ले सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं. बट टेक्निकली ओरल पेन किलर से ज्यादा लोकल चीजें काम करती है. तो लोकल चीजों में होता है गरम एंड ठंडा. ओके. सो गरम सेक एंड कोल्ड कंप्रेसेस. गरम सेक भी एक तरीका रहता है लेने के लिए. सबसे बेस्ट है हमारा ट्रेडिशनल वाटर बैग. ओके. बिकॉज याद रखना, पानी को एक ही लेवल तक आप गर्म कर सकते हैं, उससे ज्यादा गर्म नहीं होता है. तो अगर आपने पानी भर दिया उसके अंदर तो वो सेफ हो जाता है. कभी कभी इलेक्ट्रिक में आप इतना ज्यादा हीट कर देते हैं कि वो स्किन वहां पे जल जाती है. सो हॉट बैग आपको रखनी रहती है आपके बैक पे या आपके नेक पे जहां भी दर्द हो रहा है, 10-15 मिनट के लिए ही. ओके. उसके थोड़े देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद आपको लोकल आइसिंग करने का. आइस 5-10 मिनट के लिए करेंगे तो भी बहुत हो गया. ओके. ये लोकल आइसिंग से क्या होगा
कि आपका द ब्लड सप्लाई, गर्म पानी से वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ता है और आपके मसल्स को थोड़ी राहत मिलती है, और जो अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है या सूजन आ जाती है वो आइसिंग से कम हो जाता है। सो पेन किलर से ज्यादा ये सारी चीजें काम करेगी। सो जस्ट ये थोड़े से बेसिक स्टेप्स अगर आप लेंगे तो 90% ऑफ आपका बैक रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। There are certain things jahan you have to be careful. Okay, so these in our terms is called as a red flag. Red flag मतलब क्या है कि आपके बॉडी में कोई ऐसी चीजें आपने फाइंड की तो आपको डर लग जाना चाहिए। जैसे हमें सबको पता है कि छाती में दर्द हुआ और हाथ में दर्द हुआ तो आवाज नहीं करने का, चुपचाप डॉक्टर के पास जाने का और ईसीजी निकाल लेने का, राइट? क्योंकि दैट इज अ साइन ऑफ हार्ट अटैक। सेम वे अगर आपके गर्दन से दर्द हाथ में जाए या आपके कमर से दर्द पैरों में जाए, मतलब आपके हाथ में पैर में दर्द हो, so if you get tingling, numbness, heaviness, okay, or shooting pain in the legs, or you start feeling that your legs are weak, या तो फिर हम बोलते हैं ना पाय बधीर झाले, आपल्याला चालायला नाही जमत, हेवीनेस आ गया है, these are all symptoms कि बैक का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ गया है, जहां पे और जोर के वजह से ये गादी शिफ्ट आउट हो गई है और वो जाके नस को दबाने लगी है, जिसके कारण आपके हाथ पैरों में तकलीफ हो रही है। ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ सामने से नहीं करना चाहिए, पहले आपको आपके डॉक्टर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जब तक आप डॉक्टर को कनेक्ट नहीं करते, आप घर पे आराम कीजिए, गर्म ठंडा सेक लीजिए। अगर आप आराम करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप आराम नहीं करेंगे और पेन किलर खा के चलना फिरना चालू रखेंगे, अपना काम चालू रखेंगे, माइंड यू आप आगे जाके रिग्रेट करेंगे, क्योंकि आपका अंदर का प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। नाउ जस्ट one thing, 2-3 things I want to tell you about your rest. Okay, याद रखना, रेस्टिंग के लिए यू डोंट नीड एनी स्पेशल बेड्स। कोई भी रेगुलर बेड जिसपे आप सो रहे आप उस पे सोना है। पिलो जो है वो यूज करना एक पर्टिकुलर वे में यूज करना रहता है। सो वो एक सॉफ्ट पिलो होना चाहिए, फ्लफी होना चाहिए और थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ताकि आप जब भी सोए ओके वो आपके हेड, नेक और शोल्डर तीनों को सपोर्ट देना चाहिए। ओके, अगर आपने सिर्फ यहां तक पिलो रखा तो पूरी रात आपका नेक ऐसा रहेगा जो आपके गर्दन को तकलीफ देगा। आपने अगर पिलो नहीं लिया तो नेक ऐसा रहेगा, अगेन वो तकलीफ देने वाला है। तो एक न्यूट्रल पोजीशन में रखना चाहिए। थिकनेस इज वेरी सिंपल, आपके बेड से लेके आपके कान तक जितनी जगह है उतना थिक पिलो आपको रखना है, ताकि आप साइड में सो तो आपका गर्दन पूरे टाइम ऐसा लटका ना रहे। आपको कोई स्पेशल एक्सपेंसिव पिलोस की जरूरत नहीं है, ना तो आपको कोई स्पेशल बेड्स वगैरह की जरूरत नहीं है, एंड 100% आपको नीचे जमीन पे या पाट पे सोने की जरूरत नहीं है। These are some myths which I want to bust out. So before going, very specific, थोड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ज्यादा देर बैठे नहीं रहना है, वजन उठाने के टाइम थोड़ा ध्यान रखना है, झटका नहीं लगना चाहिए, एक्सरसाइजेस रिस्पॉन्सिबली करना है। कोई रेड फ्लैग्स रहा तो कॉशियसली आपको आपके डॉक्टर के साथ कनेक्ट करना है। And with this 80% प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। With this I will stop talking now.